Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. Welcome to my channel, and today this is the 6th video of our video lecture series regarding Indian modern history, and in today's video we are going to deal with the MCQs relating to the topic, that is Indian Revolt of 1857. ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6th ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੁਣਿੰਦਾ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ 26-27 ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। The first question है बेटा, the immediate cause of India's first war of independence was। ਤਾਂ 1857 ਦੇ ਰਿਵੋਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਆ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 1857 ਰਿਵੋਲਟ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੌਜ਼, ਔਰ ਕੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੌਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਸਲੈਬਸ ਬਾਈ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, suspicion about British interference in religion, C option that is your military discontent, D option economic exploitation of India। अगर आप कंसंट्रेट करिए तो बेटा yes first is the reason, yes doctrine of lapse reason ਸੀਗਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਮੀਡੀਏਟ, ਜਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਵੋਲਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਲੈਪਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਨਫੀਲਡ ਰਾਈਫਲਸ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਉੜੀ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਐਨਫੀਲਡ ਰਾਈਫਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈ ਉਸਦੇ ਜੋ ਕਾਰਤੂਸ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਤੂਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਤੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਊ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਡਾਕਟ੍ਰਿਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਨ ਰਿਲੀਜਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਯੈਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਜ਼। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर ध्यान नाल पढ़ना है, क्वेश्चन की वर्डिंग ते ध्यान दोगे तो ही आंसर सही होएगा। अगर तुसी इमीडिएट में फोकस नहीं करोगे तो मे बी शायद फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के इसे ही टिक करके अगे चले जाओगे और अपना क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो थोड़ी जी पेशेंस दे नाल हमेशा आप MCQs नूं हैंडल करना है। सो नैक्सट क्वेश्चन वाल वधिए बेटा। सैकेंड क्वेश्चन है with which uprising is मंगल पांडे एसोसीएटेड। तब मंगल पांडे ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ 1857 ਰਿਵੋਲਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਬੈਰਕਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਸੀ 1857 ਰਿਵੋਲਟ ਦੀ। और थर्ड क्वेश्चन की कह रहे हैं बच्चे, थर्ड इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज bestowed with the title of साहिब आलम बहादुर by बहादुर शाह during the uprising of 1857। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮ ਬਹਾਦੁਰ। ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਨਸਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਖਤ ਖਾਨ। ਸੋ ਬਖਤ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਨਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਟ ਇੰਪॉर्टेंट है, ऑलरेडी कुछ एग्जाम्स आ चुके हैं वो
भी कवर कर रही हाँ। सो अज के लैक्चर काफ़ी हद तक 1857 रिवोल्ट रिलेटेड तुहाडे जिन्ने भी इंपॉर्टेंट MCQs है वो सारे तुहाडे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, सो ये थोड़ा अनकॉमन क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम च भी आ चुके हैं, तो इसनूं भी एडिशन कर लो तुसीं अपने नोट्स के अंदर कि बख्त खान वास्ते टाइटल यूज़ किया गया सी, दैट इज़ साहिबे आलम बहादुर, और यह बहादुर शाह जफर ने जो है वो टाइटल दिता सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज स्टार्टेड फ्रॉम, तो फर्स्ट वर्ल्ड जी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है, इसकी एक्चुअल स्टार्टिंग असीं कित्थों मानते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस देखो, लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। ठीक, तो इसका आंसर स्ट्रेट वे की होएगा? मेरठ होएगा, क्योंकि बेटा पिछे आप हुणे क्वेश्चन किया है मंगल पांडे वाला, और मंगल पांडे दे विच असीं जिहड़ी गल कीती है प्लेस की वो बैरकपुर की है, पर असीं इसनूं जिहड़ा है ऑबवियसली स्टार्टिंग नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह सिंगल बंदा सी जिसने कि सब तो पहला अपने जिहड़े आ वो हथियार चक्के सी, लेकिन मेरठ तो असीं जिहड़ा है दी स्टार्टिंग मानते हैं, क्योंकि इत्थे जिहड़ी है वो तुहाडी पूरी दी पूरी इन्फेंट्री जिहड़ी है वो अपने हथियार चकदी है और अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहड़ा है वो हो जाती है, और उस तो बाद अपनी मार्च जिहड़ी है वो दिल्ली वाल शुरू कर देती है। सो इस करके असीं मेरठ नूं जिहड़ा है वो फर्स्ट प्लेस मानते हैं फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विच हैपन एट द टाइम ऑफ 1857। नैक्सट बेटा, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज़ वेरी ईजी क्वेश्चन, बट फिर भी कई बार बच्चों को नहीं पता होंदा कि उस टाइम के उत्ते जागरूकता उत्पन्न करने वास्ते असीं किहड़ी चीज़ नूं एज अ सिंबल यूज़ किया सी। सो सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंट स्ट्रगल वॉज, तो ये सी बेटा लोटस एंड चपातीज़। तो लोटस फ्लावर ते चपातीज़ जिहड़ियां ने वो एक थां तो दूजी थां दे उत्ते भेजियां जांदियां सीगियां, तां एक सिंबल सीगा एक तरीके दे नाल कम्यूनीकेट करन दा, लोकां दे विच जिहड़ा है जागरूकता उत्पन्न करन दा, क्योंकि उस टाइम तक उन्ना ईजीली साडे कोल आपां कहिए कि न्यूज़पेपर्स वगैरह जिहड़े आ वो अवेलेबल नहीं सी। सो इस करके कई तरीका सी लोगों तक जिहड़ा है अपनी गल पहुँचाउण दा, जागरूकता पैदा करन दा। सो सिंबल जिहड़े सी काउंट करदे इस करके की है लोटस ते चपातीज़ है। नेक्स्ट कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन। So sixth question है, who among the following was the leader of the revolt during 1857 at बरेली? So बरेली तो कौन सी बेटा? That is खान बहादुर। तो यह किहड़ी जगह के उत्ते किहड़े लीडर सी, तुहानूं इंडिविजुअल अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मैचिंग भी क्वेश्चन दी आ सकती है। मैं दोनों तरह के जिहड़े टाइप्स है तुहाडे वास्ते MCQs वास्ते लैके आई हाँ। एक सिंपल टाइप हो गया कि बरेली तो कौन रिप्रजेंट कर रहा सी, दैट इज़ खान बहादुर। तो बेसिकली एक लिस्ट है डिफरेंट प्लेसिस से उन्होंने जिहड़े रिप्रजेंटेटिव सीगे, वो लिस्ट तुसीं जरूर लर्न करना। ठीक है, किद्दां क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं तुहाडे सामने प्रेजेंट कर रही हाँ। सो बरेली दे रिलेटेड साडे कोल क्वेश्चन आ गया, सो ये आंसर है खान बहादुर। और सेवंथ क्वेश्चन है बेटा, महारानी लक्ष्मीबाई हैड कम्बैटेड इन द लास्ट बैटल अगेंस्ट, यह क्वेश्चन आ जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई नूं किसने मारिया सी या किसने हराया सी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो इसका सिंगल आंसर है दैट इज सर ह्यूज रोज। तो जो ब्रिटिशर उस टाइम के उत्ते सीगा वो कौन सीगा, जनरल कौन सी उन्होंने, दैट इज ह्यूज रोज। बाय हार्ट लर्न कर लेना, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद? तो स्पेसिफिकली हुण जिहड़ा है इलाहाबाद की गल आ रही है, और इलाहाबाद तो जिहड़े साडे लीडर सीगे वो कौन सी, मौलवी लियाकत अली। ठीक, बार बार ताई बोल रही हाँ कि लीडर्स एंड प्लेसिस उसनूं जरूर लर्न करना, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स विच आ चुके हैं। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 who of the following was betrayed by a friend, captured and put to death by Britishers? तो किहड़े लीडर सी जिन्होंने कि उन्होंने जिहड़े फ्रेंड है उन्होंने धोखा दिता सी और पकड़वा दिता सी, और उस तो बाद उन्होंने जो है फांसी दे दी गई सी, और वो है तुहाडे तांतिया टोपे। तांतिया टोपे दे एक फ्रेंड सी जमींदार जिन्होंने बेसिकली इन्होंने बिट्रे किया सी, धोखा दिता सी। Now 10th question, the real name of which of the following leader of 1857 was रामचंद्र पांडुरंग? रामचंद्र पांडुरंग जो है वो रियल नेम किसका सी? यस, दिस इज अगेन तांत्या टोपे। याद रखिएगा, तांत्या टोपे का जिहड़ा तुहाडा ओरिजिनल नाम है वो की है, दैट इज योर रामचंद्र पांडुरंग। एसोसिएट कर लो ये दोनों नामां नूं। नेक्स्ट बच्चे 11th क्वेश्चन है, नाउ इंडियंस वर अश्योर्ड ऑफ मैनी थिंग्स इन द डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन 1858। 1857 रिवोल्ट ਨੂੰ क्रश ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जस्ट आफ्टर 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ क्वीन विक्टोरिया अपनी प्रोक्लेमेशन ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग अश्योरेंसेस वाज फुलफिल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट? ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂसेस ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? सो
ऑप्शंस वाल देखिए आप। फर्स्ट इज पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन विल बी अबंडेंट, स्टेटस को ऑफ द नेटिव रूलर्स वुड बी मेंटेन्ड, इक्वल ट्रीटमेंट वुड बी गिवन टू ऑल सब्जेक्ट्स इंडियंस एंड यूरोपियंस, ते डी ऑप्शन है देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ इंडियंस। ओके, सो ये थोड़ा बहुत अगे जाके करनगे, इंटरफेरेंस घटा देंगे, ठीक है, बट इत्थे एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं आंसर है। इक्वल ट्रीटमेंट कदे भी नहीं दिता गया, बिल्कुल गलत है। स्टेटस को नेटिव रूलर्स वुड बी मेनटेन्ड, जिवें हालात है उवें ही रखे जाएंगे, नहीं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उस तो बाद आप देखांगे अवध नैक्सट किया जाएगा, होर कुछ प्लेसिस भी नैक्सट कीतियां जाणगियां। तो फर्स्ट ऑप्शन वाल ध्यान दिंदे आ, पॉलिसी ऑफ अनैक्सेशन विल बी अबंडेंट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी मेजर पॉलिसी और उसके नाल जिहड़ा है मेन फोकस सिर्फ अलग अलग नेटिव रूलर्स नूं अपने अंदर हथियान दा, इस तरीके की पॉलिसी डेफिनेटली कोई भी नहीं आई। सो ये मेजर पॉलिसी जी है अनैक्सेशन की, वो वाकई उन्होंने अबंडेंट करती सी, थोड़ी देर वास्ते जी है वो रोक दी सी, और ऐसी कोई मेजर पॉलिसी के नालों नहीं आए। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। स्टेटस को मतलब है कि उस ही हालात दे विच ही असी अगे रखिया, अगे कोई भी चेंजिज ही नहीं कीतियां, ठीक है। अगे किसी नूं भी असी जिहड़ा है, किसी भी राज नूं जिहड़ा है, किसी भी नेटिव रूलर नूं असी अपने राज दे विच नहीं मिलाया, ऐसा नहीं है। स्टेटस को एग्जैक्टली नहीं रहा, इस करके इसनूं ना चूज करके असी ए ऑप्शन नूं चूज करांगे, और सी बिल्कुल भी रेलीवेंट नहीं है, डी बहुत ही घट रेलीवेंट है। हाँ, थोड़ा बहुत इन्होंने अपना पॉलिसी चेंज की है, सोशल अफेयर्स से घट इन्फ्लुएंस करेंगे, बट फिर भी थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस हजे इन्हों की कंटिन्यू रहेगी। सो बेस्ट ऑप्शन जिवें आप फॉलो करते होंगे कि चारां चों जिहड़ी अगर दो ज़्यादा कह लो कि ठीक है, तो उन्होंने विचों भी बेस्ट किहड़ी है, तो बेस्ट जी है वो ए ऑप्शन है कि कोई मेजर अनैक्सेशन की पॉलिसी के नाल वाकई नहीं आए सी। तो ये जी गल इन्होंने अपनी जी प्रोक्लेमेशन च कही सी, उससे डेफिनेटली इन्होंने उसनूं फॉलो किया सी, राइट। 12th question, arrange the following events of Indian Revolution of 1857 in their correct chronological order। तो जिहड़ियां 1857 के टाइम ते घटनावां होईयां उन्हां नूं तुसीं एक ऑर्डर दे विच जिहड़ा है वो ठीक करके लिखो। इस तरीके दा भी थोड़ा क्वेश्चन जिहड़ा है वो फॉर्मेट हो सकता है। किहड़ियां घटनावां बेटा? इंसीडेंट ऑफ मंगल पांडे एट बैरकपुर, इंसीडेंट ऑफ सोल्जर्स एट मेरठ, अपराइजिंग ऑफ झांसी, अपराइजिंग ऑफ कानपुर। तो ये तुसी सीरीज लगाना है, और स्ट्रेट वे एक्चुअली यही सीरीज ठीक है, 1 2 3 4 इज़ द राइट वन। सब तो पहला मंगल पांडे का इशू होया, फिर मेरठ, झांसी और कानपुर थोड़ा बहुत ओवरलैप करते हैं, बट असी झांसी नूं पहला स्पेस दे सकते हैं क्योंकि होर साडे कोल कोई ऑप्शन भी नहीं है। सो मंगल पांडे वास्ते जो आप एग्जैक्ट डेट की गल करते हैं तो बाय हार्ट बेटा डेट्स डेफिनेटली याद कर लो। फॉर मंगल पांडे दिस इज़ 29 मार्च 1857 सी। मेरठ वास्ते असीं याद करते हैं 10 मई 1857। ये दो डेट्स डेफिनेटली एंड मंथ्स याद कर लो। उस तो बाद फिर अगर आप गल करिए तो अपने को जिहड़ा है दो प्लेसिस एग्जैक्टली आ गए, एक झांसी आया, एक कानपुर आया। तो साडे को जिहड़ा है झांसी वास्ते जिहड़ा है वो 5 जून 1857 एग्जैक्ट डेट है। कानपुर समवेयर इन जून है, 5 टू अराउंड 24 जून, एग्जैक्ट डेट नहीं है। सो इस करके असीं इसनूं जिहड़ा है 4th नंबर ते लै जाएंगे। इस तो पहला असीं झांसी दे वास्ते जिहड़ा है वो टाइम पीरियड लैके आवांगे, राइट। सो 1 2 3 4 इज़ द राइट ऑप्शन। नैक्सट बेटा क्वेश्चन है मैचिंग दा, और एक पासे लिस्ट है साडे कोल, एक पासे किस तरीके दी कंसीक्वेंसिस होईयां वो है। सो रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे इधर है डिपोर्टेड टू रंगून, फ्लैट टू नेपाल, ठीक है। देन फिर नाना साहेब एंड जो है तोड़ा बहादुर शाह जफर, कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, किल्ड इन बैटल, ठीक। तो इन्होंने आप मैच करना है। सो येस ऑब्वियसली 4 3 2 1 उल्टियां ऑप्शन ही होणगियां। लक्ष्मीबाई नूं आपां नूं पता है कि ही वॉज किल्ड, ठीक है, उन्होंने जो है मार दिता गया सीगा। सो 4th ऑप्शन आ गई थोड़े कोल, किल्ड इन बैटल, राइट। उस तो बाद बी वाल देखिए तांत्या टोपे। सो तांत्या टोपे ने आप हुणे क्वेश्चन किया, इन्होंने पकड़वा दिता गया सी, कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड है। देन नाना साहेब है, नाना साहेब ही एक्चुअली फ्लैट टू नेपाल, वो नेपाल चले गए सीगे। एंड फाइनली जिहड़ा है डी साडे कोल है बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर वाज एक्चुअली डिपोर्टेड टू रंगून, उन्होंने काले पानी की सज़ा दे दी गई सी, राइट। चलो जी नैक्सट क्वेश्चन ते आने आ। नैक्सट इज़ अवर 14th क्वेश्चन। इत्थे फिर साडे को जो है बेटा मैचिंग दा क्वेश्चन है। इत्थे मैं तुहानूं कह रही सी कि जिस तरीके दे नाल आपां नूं कल्ला कल्ला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उवें ही एक तरफ जो है लीडर्स और दूसरी तरफ प्लेसिस नूं लैके मैचिंग दा क्वेश्चन भी सानूं जिहड़ा है आ सकता है। सो इत्थे देखो बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला है, बेगम जीनत महल है, एंड डी इज़ योर कुंवर सिंह। सो 1 2 3 4 स्ट्रेट वे ही साडे कोल आंसर है। बेगम हजरत महल लखनऊ है, मौलवी अहमदुल्ला ही इज़ फ्रॉम फैजाबाद, वो लीडर सीगे उत्थे। एंड बेगम जीनत महल डेफिनेटली की हो जाएगा दिल्ली, एंड कुंवर सिंह ही वॉज द लीडर फ्रॉम अर्रा।
ठीक है। सो सैकेंड तरीका है तुहाडा इस क्वेश्चन को पूछण दा कि जिहदे च की मैचिंग पूछी जाएगी, या फिर आपां पहला कीता है कि सिंगल पर्सन विद द प्लेस तुसीं उसनूं जो है वो एसोसीएट करना होएगा। Coming to the next question, now 15th question beta, consider the following statements in regard to the revolt of 1857. Okay, देखो किहड़ी-किहड़ी घटनावां किहड़ी-किहड़ी गल्लां होईयां, फीचर्स की सीगे। First is almost half of the Indian soldiers did not participate in the revolt, अद्धे तो ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट नहीं कीता सी। Second, British recovered आगरा फर्स्ट, ब्रिटिशर्स ने आगरा नूं पहला जिहड़ा है जित्तिया। थर्ड, इंडियन मर्चेंट सुपोर्टेड रिवोल्ट, इंडियन मर्चेंट्स ने जिहड़ा है रिवोल्ट दा सपोर्ट कीता सी। फोर्थ, इंडियन इंटैलीजेंसिया प्रेड फॉर द सक्सैस ऑफ ब्रिटिशर्स, जिहड़े पढ़े लिखे लोग सी उन्होंने अंग्रेज़ों को जिताउण दे लई प्रे कीती सी। तां ये चार सानू स्टेटमेंट्स दित्तियां होईयां ने और आपां नूं की पुछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट जो है दे आर करैक्ट। तां किहड़ियां स्टेटमेंट साडे कोल जिहड़ियां ने ओह करैक्ट ने बेटा। सो 1 and 4 ये स्टेटमेंट साडे कोल जो है वो करैक्ट है। किस तरीके दे नाल? फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बेटा, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सोल्जर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट, अद्धे तो ज़्यादा सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया सी। यस, ठीक है, क्योंकि सारे सोल्जर्स ने कदे भी रिवोल्ट नहीं किया, क्योंकि ये बेसिकली वैसे ही थोड़ा रिवोल्ट है वो ज़्यादातर फोकस सीगा टूवर्ड्स नॉर्दर्न इंडिया दे विच ही मेनली जिहड़ा है फोकस किया गया सीगा, ठीक है। एंड फोर्थ इज़ इंडियन इंटैलीजेंसिया उस टाइम तक इनफैक्ट जिहड़ा है वो ब्रिटिशर्स की सपोर्ट दे विच खड़ा सीगा, राइट। सो ब्रिटिशर्स ने आगरा पहला रिकवर किया, मर्चेंट्स ने रिवोल्ट को सपोर्ट किया बिल्कुल भी नहीं, ट्रेडर्स से मर्चेंट्स ने नहीं किया सी। सो सैकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जी गलत है। सो इन दैट अगर आप करैक्ट स्टेटमेंट की गल करिए तो 1 and 4 बोथ द स्टेटमेंट्स आर बेसिकली करेक्ट, राइट। Now 16th question, which of the following commission is associated with the army reorganization after suppression of revolt of 1857? 1857 रिवोल्ट ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। थोड़ा लेसर नोन फैक्ट है, इस करके इसमें बाय हार्ट लर्न कर लो, अपने जो नोट्स हैं उससे ऐड कर लो। और इस द राइट आंसर है बेटा दैट इज़ योर पील कमीशन बिठाया गया सी। फिर इन्हां दी रिकमेंडेशन के बेसिस के उत्ते पूरी दी पूरी आर्मी नूं जो है वो रीऑर्गेनाइज किया सी, जिस दे विच कि तुहाडे इंडियन सोल्जर्स की जिहड़ी मात्रा है हर एक पर्टिकुलर प्लेटून दे विच घटा दित्ती सी इन कंपैरिजन टू द यूरोपियन। और इंडियन नूं फर्स्ट लाइन दे विच जिहड़ा है रखिया जांदा सी ताकि जो भी अटैक वगैरह है उहदे च ऑब्वियसली इंडियंस ही मरन। और कंबीनेशन जिहड़ा है यूरोपियंस दा ते इंडियंस दी उहदी रेशो नूं दोबारा रीचैक किया, ठीक है। यूरोपियंस जिहड़े हैं सोल्जर्स वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होने चाहिए इन कंपैरिजन टू द इंडियन सोल्जर्स। तो ये सारी चीज़ां जिहड़ियां कीतियां गईयां रीऑर्गेनाइज, इस वास्ते कमीशन बैठी सी और कमीशन का नाम याद रखना दैट इज़ योर पील कमीशन। नाउ कमिंग टू द 17th क्वेश्चन, who among the following was the leader of the revolution of 1857 in Assam? यह भी लेसर नोन फैक्ट है बेटा। असम तो लीडर कौन सी? असम दे विच भी 1857 रिवोल्ट दी जिहड़ियां ने चिंगारियां आईयां और इहदा नाम याद रखिया तुसीं दीवान मनीराम दत्ता, ठीक है। इस फिर ऐड करो दीवान मनीराम दत्ता, ही वॉज द लीडर फ्रॉम असम एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट। नाउ 18th क्वेश्चन, the revolt of 1857 was witnessed by the poet, again important question। 1857 revolt time ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ poet ਸੀਗੇ? and this is basically Mirza Ghalib, right। now 19th question, which dynasty supported British maximum during the 1857 freedom movement? ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਵੋਲਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ? and this is ਸਿੰਧੀਆਜ਼ ਆਫ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀਆਜ਼ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 20th question, the educated middle class in India, ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਆਪਸ਼ਨਸ, ਅਪੋਜ਼ ਦ ਰਿਵੋਲਟ, ਉਲਟਾ ਗਏ ਸੀ ਰਿਵੋਲਟ ਦੇ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਪੋਰਟਿਡ ਦ ਰਿਵੋਲਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਰਿਮੇਨਡ ਨਿਊਟਰਲ, ਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗੇ। ਫੌਟ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇਟਿਵ ਰੂਲਰਸ ਦੇ ਹੀ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਿਊਟਰਲ वन। मिडल क्लास का न्यूट्रल रोल सीगा, ना ही प्रो सी ना ही वो अगेंस्ट सी। उस टाइम तक इन्नी ज़्यादा कह लो कि उन्होंने अंदर जागरूकता उत्पन्न ही नहीं हुई सी। इसे करके ही 1857 रिवोल्ट नूं जिहड़ा है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बनने तो बहुत सारे जिहड़े साडे हिस्टोरीयंस है वो मना करते हैं। नाउ कमिंग टू 21st क्वेश्चन बेटा, which of the following territory was not affected by the revolt of 1857?
कह लो आपां इहदा मतलब यह है कि किसने पार्टिसिपेट ही नहीं कीता सी। किहड़ा एरिया सी जिसने पार्टिसिपेट नहीं कीता? झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ, डेफिनेटली तीनों एरिया सीगे। तो किहड़ा एरिया हो जाएगा? दैट इज बेसिकली चित्तौड़, राइट। नाउ 22nd क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवोल्ट? रिवोल्ट असी क्यों हार गए? कारण की सीगा? लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी की सी उदों? आई थिंक बिल्कुल भी नहीं। हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो बहुत ज़्यादा सीगी, तो यह कारण कदे भी नहीं हो सकता। इट्स इफेक्ट वॉज विद इन लिमिटेड एरियाज, हाँ एक कारण हो सकता है क्योंकि पूरा इंडिया इस इन्वॉल्व नहीं सीगा। डी ऑप्शन, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, हाँ ये भी एक कारण है। लेकिन बी ऑप्शन वाल ध्यान दो, लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके नाल नहीं बन पाई सी, कॉमन स्ट्रेटजी नहीं बन पाई सी, नेटिव रूलर्स अपनी प्लान कर ही रहे सीगे और पता ही नहीं सीगा कि सिपाही मिटनी भी हो जाएगी, कि सोल्जर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। वो ऑल ऑफ ए सडन होया, इस करके चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं किया जा पाया। इस करके बी इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन, यही तुहाडा सही आंसर काउंट होएगा। Now coming to next question, 23rd question, modern historian जो है who called revolt of 1857 as the first independence war। क्लासिकल क्वेश्चन है, आना ही चाहिए है, बहुत सारे एग्जाम्स आ चुके हैं। कौन है? वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने की किया सी कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इन्हों की बुक का भी यही नाम है, ठीक। नेक्स्ट बेटा, now 24th question, the first Indian to write in Indian language on the causes of uprising of 1857। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट इन्ना पॉपुलर क्वेश्चन नहीं है, लेसर नोन फैक्ट है। अच्छे तरीके नाल ध्यान दो, केड़ा बंदा, केड़ा ऐसा पहला इंडियन राइटर है जिसने कि इंडियन लैंग्वेज दे विच जिहड़ा है कारणा दी गल कीती सी, एंड दिस इज, तुहानूं बहुत हैरानी होएगी जान के, सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए थोड़ी जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं आप। सर सैयद अहमद खान वॉज द फर्स्ट इंडियन टू हैव रिटन इन एन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेज of revolt of 1857। In 1859 he published the booklet that is Asbabe Bagawate Hind। ये बुक का नाम सेगा। So the causes of Indian revolt, ये is the meaning है, and in which he studied the causes of Indian revolt, जिहदे की causes ਨੂੰ properly उन्होंने Indian language ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। Next 25th question, now the statement that is the so-called first national war of independence was neither first nor national nor a war of independence is associated with। किहड़े हिस्टोरीयन ने कहा कि ना वॉर है, ना ही पहली है, ना ही असीं इसनूं वॉर फॉर इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। दो तीन व्यू पॉइंट्स बहुत ही प्रोमिनेंट है, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, इस करके तुसीं भी डेफिनेटली इसनूं ध्यान रखना। दिस इज़ बाय आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने कहा सी कि बिल्कुल भी ये नेशनल लैवल का रिवोल्ट नहीं सी, ते ना ही असीं इसनूं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिहड़ा है वो कह सकते हैं। Now next question, 26th one, which one of the following group did not participate in the revolt? किसने पार्टिसिपेट नहीं किया सी? एग्रीकल्चरल लेबर, शाहूकार, फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स। कोड्स हैं तो ऑब्वियसली ऑप्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। ओनली 1, 1 and 2, ओनली 2, 2 and 4। तो ऑब्वियसली बेस्ट ऑप्शन साढ़े कोल की होएगी? डी ऑप्शन होएगी बेटा, 2 and 4, ठीक है, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स तो बिल्कुल दूर दूर तक भी नहीं सीगे और शाहूकार भी किस तरीके नाल हो सकते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन लिए सानू बेस्ट ऑप्शन लिए जाना पैंदा है, ठीक है। कि लेबरर सीगे, कि फार्मर सीगे, हाँ कह सकते हैं इनडायरैक्टली ना नेटिव रूलर्स को सपोर्ट कर सकते होंगे, और बाउंड ऑप्शंस है सारियां हो ही नहीं सकदियां। सो द बेस्ट वन इज 2 and 4। यस, शाहूकार से लैंडलॉर्ड्स ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट उदों नहीं किया सी, राइट। सो 27th क्वेश्चन, वट वर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। तो क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन जो 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ आई, ठीक है, रिवोल्ट ਨੂੰ दबाउण तो बाद, तो उसके की मेन ऑब्जेक्टिव सी ये आपां नूं पुछ रहा है। फर्स्ट इज टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू अनैक्स इंडियन स्टेट, कि साडा कोई मंतव नहीं है कि असीं फर्दर जिहड़े स्टेट्स हैं उन्हां नूं अनैक्स करिए। सेकेंड, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, स्ट्रेट वे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश क्राउन के अंडर चली जाएगी। थर्ड, टू रेगुलेट ईस्ट इंडियन कंपनीज ट्रेड विद इंडिया, कि असी ट्रेड जी है उसनू रेगूलेट करांगे। तो किहड़ियां चीज़ां आउणगियां? डेफिनेटली 1 and 2 बेटा, ठीक है। ईस्ट इंडियन ट्रेड नू रेगूलेट करने की गल नहीं है, स्ट्रेट वे सारा सारा रूल ही अपने हाथ दे विच जिहड़ा है क्वीन ने लिता सीगा। और इस दे नाल फिर आपां ये पहला भी क्वेश्चन हैंडल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि साडी कोई इंटेंशन नहीं है कि असी जिहड़े होर राजे हैं उन्हां नू जिहड़ा है ओ अनैक्स करिए, उन्हां दे राज नू जो है वो ब्रिटिश राज दे विच मिलाइए, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रेट वे योर फर्स्ट एंड द सेकेंड ऑप्शन, ठीक।
ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ 1857 ਰਿਵੋਲਟ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।